नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। चैप्टर 8 स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर 8 फंक्शन में सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट एंड ईच वैल्यू ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विथ सेट बी बाय सम स्पेसिफिक रूल, रिलेशन और correspondence, then it is called function. So if A and B are any two non-empty sets and each element of set A is related with one and only one element of set B by any rule, by any relation, by any correspondence, then that's rule, relation or correspondence is called function. तो if function here it is denoted by f, symbolically उसको f, g, h अलग अलग नाम से हम लिख सकते हैं. But if it is symbolically presented as f denoted as small f, it is presented as function a to b, जिसमें जो a है it is called domain set. First set is called domain set and second is codomain set. Then set a is called domain set and set b is called codomain set. Now type of functions. There are three types of functions. It is one function. One function का मतलब हुआ if for any two values of the domain set भी कोई भी दो वैल्यू के लिए their images in codomain set are also different. तो each element of domain set के लिए जो functional images है codomain set में से B में से वो different values है, then it is called one function. So for each value there is a different imaginary value in codomain set. डोमेन की हर एक वैल्यू के लिए कोडोमेन में डिफरेंट वैल्यू है, तब वो वन फंक्शन है. नेक्स्ट इज मेनी वन फंक्शन. इफ फॉर एनी टू वैल्यूज ऑफ द डोमेन सेट, their images in codomain set are same. कोई भी दो वैल्यू के लिए आउट ऑफ एंटायर डोमेन सेट, ऑल वैल्यूज में से कोई भी दो वैल्यू के लिए अगर कोई एक वैल्यू एसोसिएट होती है आउट ऑफ कोडोमेन सेट, देन इट इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन. नाउ फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ डोमेन सेट, इफ देयर इज कोरस्पॉन्डिंग फंक्शनल वैल्यू यानी इमेज इज सेम, इज कांस्टेंट, देन इट इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन. सो इफ फॉर ईच वैल्यू ऑफ द डोमेन their images in codomain are same, then it is called constant function. So there are three types of function: many one first of all, then many one and constant function. In one function, for each value of domain set, corresponding functional image is different. And in case of many one function, for any two values of domain set, their associated functional image is same, then it is called many one function. And for all values of domain set, if its corresponding imaginary point out of codomain set is same, is constant, then it is called constant function. So there are three types of function, and function is a relationship between two non-empty set by any rule, by any relation, by any correspondence, that a relationship is established. Next topic of this chapter is about equality of function. ये तीन टाइप के फंक्शन और इक्वालिटी ऑफ फंक्शन के बारे में पूछा जाता है. तो इक्वालिटी, दो फंक्शन के लिए इक्वालिटी चेक करनी हमें. सो इफ टू फंक्शंस आर f and g, two conditions to be satisfied: domain of both the function f and g both should be same. If domain of function f is equal to domain of function g, and then range of function f is equal to range of function g, then both the functions are called इक्वल फंक्शंस. तो डोमेन अगर दोनों फंक्शन के सेम है और रेंज सेम है तो ये दोनों फंक्शन सेम है. अब रेंज क्या होता है? तो जो भी डोमेन सेट की वैल्यूज के लिए सामने कोरस्पॉन्डिंग इमेजेस हमें मिलती है कोडोमेन सेट में से, इट इज कॉल्ड रेंज ऑफ अ फंक्शन. सो रेंज ऑफ अ फंक्शन इज सबसेट ऑफ कोडोमेन. इट कैन बी सबसेट ऑफ कोडोमेन. कोडोमेन एक बहुत बड़ा सेट है. अगर जैसे नेचुरल नंबर का सेट हुआ 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, z का सेट हुआ यानी इंटीजर्स का सेट, तो -0 एंड प्लस, बट होल इंटीजर्स के सारी रेंज आ गई. एंड रियल नंबर का सेट हुआ तो कोडोमेन कोई बड़ा सेट हो सकता है, बट उसमें से अगर कोई स्पेसिफिक वैल्यूज एसोसिएट हुई है डोमेन की वैल्यूज के साथ, इट इज कॉल्ड रेंज ऑफ अ फंक्शन. सो दैट रेंज ऑफ अ फंक्शन
कैन बी सबसेट ऑफ कोडोमेन और कोडोमेन इटसेल्फ, यानी कोडोमेन का सबसेट हो सकता है या तो पूरा कोडोमेन सेट रेंज के तौर पे आ सकता है। तो यहाँ पे दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है इक्वालिटी ऑफ फंक्शन के लिए। अगर डोमेन सेम है दोनों फंक्शन के, डी ऑफ एफ इज इक्वल टू डी ऑफ जी, यानी डी एफ इक्वल्स टू डी जी, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ इक्वल्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन जी, एंड सेकंड इज रेंज ऑफ फंक्शन एफ इज इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन जी, देन बोथ द फंक्शंस आर कॉल्ड इक्वल फंक्शंस। अब फंक्शन कब नहीं है उसके लिए हमें ये चेक पॉइंट क्लियर करना है कि इन विच कंडीशन दैट रिलेशन इज नॉट ट्रीटेड एज अ फंक्शन, ये खास समझना है। तो इफ फॉर एनी वैल्यू ऑफ डोमेन इमेज इज नॉट देयर इन कोडोमेन सेट, फॉर एनी वैल्यू ऑफ डोमेन सेट देयर इज कोरस्पॉन्डिंग फंक्शनल इमेज इज नॉट एग्जिस्टिंग इन कोडोमेन सेट, यानी डोमेन सेट की कोई वैल्यू के लिए सामने कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ही नहीं, ये पहली कंडीशन। और if any value of domain set is associated with more than one value of codomain set, if any one value of domain set is associated with more than one value of codomain set, in both this condition that relation is not treated as function। तो ये एक हमें टेस्ट याद रखना है कि कब वो रिलेशन फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन नहीं है होने के लिए हम चेक कर सकते हैं कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ डोमेन सेट इफ इमेज इज नॉट अवेलेबल मींस फंक्शनल वैल्यू इज नॉट देयर इन कोडोमेन सेट, अगर उसके सामने कोई वैल्यू ही नहीं है कोडोमेन सेट में, देन इट्स नॉट अ फंक्शन। एंड सेकंड इज इफ एनी वैल्यू ऑफ डोमेन सेट is associated with more than one value out of codomain set, then it is also not a function। तो ये कंडीशन याद रखनी है when relation is not treated as function। तो फंक्शन के लिए यहाँ पे तीन टाइप के फंक्शन हमें याद रखने हैं, वन वन, मैनी वन एंड कांस्टेंट। अब यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सेक्शन बी में ये क्वेश्चन नंबर 2, फंक्शन इज डिनोटेड एज एफ फंक्शन a to b where a is domain set, b कोडोमेन सेट, a की वैल्यू है -3, -1, 1 एंड 3, b की वैल्यू है यानी कोडोमेन सेट में वैल्यू है 1, 0 एंड 9। The relationship f of x is presented as x square। Now हमें चेक करना है ये चारों वैल्यूज के लिए डोमेन सेट की, f of -3 is -3 का स्क्वायर होगा 9, f of -1 स्क्वायर इज 1, f of 1 is 1 स्क्वायर इज 1, f of 3 स्क्वायर इज 9। तो डोमेन सेट A में जो चार वैल्यू है -3, 3, -1 एंड 1, अब -3 और 3 एसोसिएट हो रहा है 9 के साथ, -1 और 1 एसोसिएट हो रहा है 1 के साथ। तो यहां पे फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड कि डोमेन सेट की हर एक वैल्यू के लिए कोरस्पॉन्डिंग फंक्शनल इमेज एग्जिस्ट कर रहा है कोडोमेन सेट बी में, आंसर इज यस। तो यहां पे ये एक फंक्शन है, पहले ये क्लियर हुआ, और दो वैल्यू के लिए सामने एक वैल्यू मिल रहा है यहां पे, इसलिए ये टाइप ऑफ फंक्शन हुआ मैनी वन। और लास्ट में हम कह सकते हैं कि रेंज ऑफ फंक्शन यहाँ पे रेंज ऑफ फंक्शन एफ, तो रेंज में दो ही वैल्यू है यहाँ पे 1 एंड 9। तो कोडोमेन सेट में तीन वैल्यू है, उसमें से दो ही वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग इमेजेस के तौर पे 1 एंड 9। सो वी कैन कंक्लूड दैट range of this function is subset of codomain। range of this function is subset of codomain। अगर ये तीनों वैल्यू एसोसिएट होती तो हम बोलते कि range is codomain itself, but here range is subset of codomain and type is many one। in next question function f is 1 2 3 2n and g is 2 3 4 2n। अब यहाँ पे डोमेन सेट को डिनोट नहीं किया है किसी सिंबल से, लेकिन डोमेन सेट में फंक्शन f में तीन वैल्यू है 1 2 3 और g में तीन वैल्यू है 2 3 4 और कोडोमेन सेट है n। रिलेशन दिया गया fx is equal to 2x plus 1 and gx is equal to x minus 1। Here we need to check about equality of function, and for equality two checkpoints are there। First thing कि domain should be same for both the functions, but first condition is not satisfied क्योंकि first function का f का डोमेन है 1 2 3 और g का डोमेन है 2 3 4। तो डोमेन सेट दोनों में सेम नहीं है, पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट टेस्टिंग द फर्दर कंडीशन अबाउट रेंज ऑफ टू फंक्शंस। तो यहां पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि df डोमेन ऑफ फंक्शन f इज नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ फंक्शन g, सो f एंड g आर नॉट इक्वल फंक्शंस। बाय चांस अगर दोनों के
यहाँ पे डोमेन सेम होते तब हम फंक्शनल इमेजेस एक्सट्रैक्ट करके चेक करते कि रेंज सेम है कि नहीं है. So here on the basis of domain we can conclude that both the functions are not equal function. Next is function z to n. अब यहाँ पे डोमेन सेट है z यानी इंटीजर्स जिसमें -0 प्लस सारी पॉसिबिलिटी आएगी, लेकिन अब सब वैल्यूज के लिए चेक नहीं कर सकते, इसलिए डोमेन में हम यहाँ पे आर्बिट्री वैल्यू में सर्टेन नेगेटिव और सर्टेन पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे, यानी -3 -2 -1 0 1 2 3. और डोमेन को डोमेन सेट ऑफ दिस फंक्शन f is n natural numbers 1 to infinity and the relationship is presented as ft is equal to t square plus 1, means the element is denoted as t. Now we need to check about the type of function. So first of all, function is f of t square plus 1, relation is f of t square plus 1. Now f of -3 के लिए -3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 9 प्लस 1 आंसर आएगा 10, और f of 3 के लिए 3 स्क्वायर प्लस 1 यानी 9 प्लस 1 इज 10. तो दो वैल्यू के लिए, डोमेन सेट की दो वैल्यू के लिए यहाँ पे इमेजिनरी वैल्यू सेम है, यानी यहाँ पे मैनी वन फंक्शन है. तो कंक्लूड करना है हमें, और एक वैल्यू के लिए चेक करेंगे f of -2 के लिए, जो कि -2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 4 प्लस 1 5. तो यहाँ पे दो कंडीशन हम लिखेंगे, f of -3 इज इक्वल टू f of 3 इज इक्वल टू 10, यानी -3 और 3 की दोनों की फंक्शनल इमेज सेम है 10. और दूसरी बात, f of -2 इज नॉट इक्वल टू f of -3, क्योंकि f of -2 है 5 एंड f of -3 की वैल्यू है 10, ये दोनों सेम नहीं है. तो दो के लिए सेम है, फॉर एनी टू वैल्यूज देयर कोरस्पॉन्डिंग इमेज इज सेम, और कोई दो वैल्यू के लिए सेम नहीं भी है, इसलिए हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे इट इज मैनी वन फंक्शन. मैनी वन फंक्शन, कोई भी दो वैल्यू के लिए फंक्शनल इमेज सेम आया है, इसलिए टाइप ऑफ फंक्शन इज मैनी वन. क्वेश्चन नंबर 9 में फंक्शन है n to n, यानी डोमेन सेट है n नेचुरल नंबर्स, को डोमेन सेट इज आल्सो नेचुरल नंबर्स, रिलेशन इज f of t where t square plus 1. डोमेन सेट ऑफ फंक्शन f is n नेचुरल नंबर्स 1 to infinity. को डोमेन सेट ऑफ फंक्शन f again नेचुरल नंबर्स 1 to infinity. Now f of t, the relation is t square plus 1. Now we need to check about type of function. f of, अगर 1 के लिए हम चेक करें तो 1 square plus 1, तो 1 plus 1 होगा 2. f of 2 के लिए 2 square plus 1, 4 plus 1 5. f of 3 के लिए 3 square plus 1 यानी 9 plus 1 10. इस तरह से अगर हम कोई भी वैल्यू लेते जाए नेचुरल नंबर सेट में से, तो उसके फंक्शनल इमेजेस ऑल टुगेदर डिफरेंट वैल्यूज आएगी, इसलिए टाइप ऑफ फंक्शन है 1 1. टाइप ऑफ फंक्शन इज 1 1. दिस इज क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन बी. नाउ सेक्शन सी में यहाँ क्वेश्चन नंबर 4, फंक्शन इज डिनोटेड एज g a to n, डोमेन सेट a एंड को डोमेन सेट n. रिलेशन g of x is x plus 1. a के लिए हमें बोला गया है डोमेन सेट ऑफ फंक्शन g is denoted as a and its range of value is 1 less than x less than equals to 4. तो यानी यहाँ पे इक्वल टू की साइन नहीं है 1 के पास, यानी 1 एक्सक्लूड कर देना है, और 4 में इक्वल टू की साइन है तो 4 को इंक्लूड करना है. तो यहाँ पे डोमेन में वैल्यू है 2 3 एंड 4, तीन वैल्यूज है 2 3 एंड 4, और कोडोमेन सेट है नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 अप टू इंफिनिटी. Now gx, relationship of this function g is g of x is x plus 1. Now g of 2, अब ये तीनों वैल्यू के लिए, तीनों जो वैल्यू है डोमेन सेट की, उसके लिए हम रेंज एक्सट्रैक्ट करेंगे. तो g of 2 is equal to 2 plus 1 3, g of 3 is 3 plus 1 4, and g of 4 is 4 plus 1 5. So range of function g is 3 4 5. Now for these three values 2 3 and 4, three values 3 4 and 5, यानी individual separate corresponding images available for each element from domain set. So we can conclude type of function is 1 1. 2 के लिए है 3 3 के लिए 4 4 के लिए 5. So corresponding जो values है, images है, वो same नहीं है कोई भी दो value के लिए from domain set. So conclusion is 1 1 function. And second thing is the range of function g. This range of function g is subset of codomain. कोडोमेन एंटायरली नेचुरल नंबर का सेट है, उसमें से ये तीन ही वैल्यू है रेंज के तौर पे, इसलिए रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में फंक्शन इज डिनोटेड एज k फ्रॉम x to y. x is domain set, y is codomain set, relation is kt is t square plus 2. Now domain set of function k, dk is equal to x, और यहाँ पे बोला गया -3 लेस देन इक्वल्स टू t लेस देन इक्वल्स टू 3, यानी -3 से 3 तक की वैल्यू लेनी है.
एंड इट बिलोंग्स टू z। एक चीज और स्पेसिफाइड की गई यहाँ पे, t बिलोंग्स टू z, यानी इंटीजर्स लेने हैं। इंटीजर्स में -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 लिया जाएगा। कोडोमेन सेट ऑफ फंक्शन k is symbolically known as y because x to y and its range is 1 less than equals to a less than equals to 20, यानी 1 से 20 के बीच की सारी वैल्यू लेनी है इंक्लूडिंग 1 एंड 20 बिकॉज इक्वल टू की साइन है। तो 1, 2, 3, 4 से लेकर 20 तक की वैल्यू है। नाउ वी नीड टू टेस्ट अबाउट द टाइप ऑफ फंक्शन। तो k of kt is equal to t square plus 2 where k of -3 is -3 square plus 2, 9 plus 2 11, k of -2 is -2 square plus 2 यानी 4 plus 2 equals to 6, k of -1 is -1 square plus 2, 1 plus 2 equals to 3, k of 0 is 0 square plus 2 यानी 0 plus 2 equals to 2, k of 1 is 1 square plus 2 यानी 1 plus 2 equals to 3। सो यहाँ पे 3 जो वैल्यू मिली हमें फंक्शनल इमेज वो दो वैल्यू के लिए मिली है यहाँ पे, k of -1 के लिए और k of 1 के लिए। ये दोनों के लिए ये वैल्यू सेम है, इसलिए k of -1 and k of 1 has same corresponding image out of codomain and value is 3, and second thing k of -3 is not equal to k of -2। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये मैनी वन फंक्शन है। एक से ज्यादा वैल्यू के लिए सामने फंक्शनल इमेज सेम आ रही है जब भी, तब हम कंक्लूड करते हैं इट्स अ मैनी वन फंक्शन। Next question number 6. Function is denoted as h, domain set A, codomain B, relation hx is equal to x plus 5. Domain set h, domain set of function h is denoted as A and its value is 1, 2, 3. Codomain set of function h is denoted as B and its value is 3, 4, 5, 6, 7, 8. It is given. Now type of function to be determined for h of x is equal to x plus 5. Relation is h of x equals to x plus 5. एक एक वैल्यू रख के चेक करेंगे। h of 1 is 1 plus 5 6, h of 2 is 2 plus 5 7, h of 3 is 3 plus 5 8। तो ये हमें 3 वैल्यू मिले। अब यहाँ पे डोमेन सेट A डोमेन सेट B को प्रेजेंट किया है। डोमेन सेट A में 1, 2, 3, डोमेन सेट को डोमेन सेट B में 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1 is associated with 6, 2 with 7 and 3 with 8। तो सेपरेट फंक्शनल इमेजेस फॉर ईच वैल्यू ऑफ डोमेन सेट। कंक्लूजन इज इट्स 1, 1 फंक्शन, 1, 1 फंक्शन है। और दूसरी बात यहाँ पे रेंज ऑफ फंक्शन h is 6, 7, 8 एंड इट इज सबसेट ऑफ दिस कोडोमेन सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. फंक्शन इज डिनोटेड एज p, p a to b, डोमेन सेट a, कोडोमेन सेट b, रिलेशन p of x is equal to 2x minus 3. Now रेंज ऑफ दिस फंक्शन p is given as -2, -1 एंड 0 में रेंज दिया है, इसलिए हमें डोमेन ढूंढना होगा। जब डोमेन सेट दिया जाता है तब हम रेंज एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो जब रेंज दिया होगा तब डोमेन निकालना है हमें। तो उसके लिए जो फंक्शन है p of x is equal to 2x minus 3 में p of x की जगह पे हम वैल्यू रखेंगे -2, -1 एंड 0। तो -2 रखने पे 2x minus 3 इक्वल्स टू -2, 3 इस साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3 minus 2 होगा 1, 2x is equal to 1, तो x is equal to 1/2। नाउ -1 is equal to 2x minus 3, 3 लेफ्ट साइड आने पे हो जाएगा पॉजिटिव, यानी 3 minus 1 होगा 2, 2x is equal to 2, तो x is equals to 1। देन px is equal to 2x minus 3 में px की जगह पे 0 रखेंगे तो 2x equals to 3, x equals to 3/2। So domain of this function p, domain of this function p, that set is A and values are 1/2, 1 and 3/2, 1/2, 1 and 3/2। ये 3 वैल्यू है डोमेन सेट ऑफ फंक्शन p। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में फंक्शन f of x is 1 minus 1 upon 1 minus x square where x belongs to r minus -1 and 1, यानी जो x की वैल्यू है वो रियल नंबर्स में से है लेकिन उसमें -1 और 1 नहीं है, और -1, 1 नहीं है। दिस इंफॉर्मेशन इज इररिलेवेंट फॉर दिस क्वेश्चन बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर f of 2 और f of 2 minus f of -2। अब सवाल ये आता है कि ये वैल्यू की, ये रिलेशन की हमें जरूरत नहीं है तो क्यों दिया है? अगर ये -1 और 1 को एक्सक्लूड नहीं करते, ये समझना है हमें, भले इसके सॉल्यूशन में इसका कोई रोल नहीं है पर ये बात समझनी है हमें कि अगर ये -1 को हम यहाँ पे रखते हैं, 1 minus -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 1 minus 1 0 हो जाएगा। अगर हम 1 रखते हैं तो भी यहाँ 0 होगा, तो 1/0 इनडिटर्मिनेट वैल्यू हो जाती है। इनडिटर्मिनेट वैल्यू ना हो फंक्शन में, इसलिए यहाँ पे x बिलोंग्स टू r यानी रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग -1 एंड 1, ये कंडीशन दी गई है। लेकिन सॉल्यूशन के अंदर जब हमें f of 2 minus f of -2 निकालना है उसमें उसका कोई रोल नहीं है।
सो पहले एफ ऑफ 2 के लिए 1 माइनस 1/1 माइनस, अब x की जगह पे 2 का स्क्वायर आएगा, तो 1 माइनस 1/1 माइनस 4, यानी 1 माइनस 1/-, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1/3, एलसीएम होगा 3 1 जा 3 प्लस 1/3 यानी 4/3 आंसर आएगा एफ ऑफ 2 के लिए। एफ ऑफ माइनस 2 के लिए 1 माइनस 1/1 माइनस 2 स्क्वायर, 1 माइनस 1/1 माइनस 4, 1 माइनस 1/-3, माइनस माइनस प्लस होगा, 1 प्लस 1/3, एलसीएम 3, सो 3 प्लस 1/3 यानी 4/3, एंड रिलेशन एफ, जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ माइनस 2 इज 4/3 माइनस 4/3, एंड आंसर इज 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में एफ ऑफ एक्स इज गिवन एज x माइनस 3/x+4 और डोमेन ऑफ फंक्शन इज गिवन है 0, 3 एंड 6। रेंज फाइंड करना है, यानी डोमेन सेट में ये 3 वैल्यू है और उसके लिए रेंज निकालनी है। तो पहले एफ ऑफ एक्स इज x माइनस 3/x+4, इसमें पहले 0 रखेंगे। एफ ऑफ 0 के लिए 0 माइनस 3/0+4, आंसर -3/4। एफ ऑफ 3 के लिए x की जगह 3 रखेंगे तो 3 माइनस 3/3+4 यानी 0/7, 0। एफ ऑफ 6 के लिए 6 माइनस 3/6+4, 6 माइनस 3 होगा 3 एंड 6 प्लस 4 होगा 10। तो यहाँ पे रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज -3/4, 0 एंड 3/10, -3/4, 0 एंड 3/10। 10th क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स इज x² इंटू ब्रैकेट x+1 होल स्क्वायर अपॉन 4 और हमें एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी है। तो पहले ये एफ ऑफ 3 के लिए 3² इंटू ब्रैकेट 3 + 1 होल स्क्वायर बाय 4, 3² इज 9 और 4 का स्क्वायर है यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4, यानी 9 इंटू 4 अपॉन 4, 4 कट होगा, 9 इंटू 4 36। एफ ऑफ 2 के लिए 2² इंटू ब्रैकेट 2 + 1 होल स्क्वायर बाय 4, 2² होगा 4, 2 + 1 का स्क्वायर है, 2 + 1 यानी 3 का स्क्वायर होगा और अपॉन में 4 है तो 4 इंटू 3² 9, 4 कट होगा तो वैल्यू आएगी 9। एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ माइनस 2 इज 36 माइनस 9, आंसर इज 27। क्वेश्चन नंबर 11 इस फंक्शन इज एफ आर टू आर, रियल नंबर सेट है दोनों, और एफ ऑफ एक्स इज x² + 2x - 1 एंड वी नीड टू एक्सट्रैक्ट दैट इंफॉर्मेशन फॉर डोमेन सेट। डोमेन सेट आर है, यानी यहाँ पे ऑल रियल नंबर्स जिसमें से हमने सर्टेन वैल्यूज ली है, -2 -1 0 1 2। को डोमेन सेट भी आर है, इसमें भी ऑल रियल नंबर्स है। अब हमें चेक करना है टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में। एफ ऑफ एक्स इज x² + 2x - 1, तो एफ ऑफ -2 की वैल्यू के लिए आएगा -2² + 2 इंटू -2 -1 यानी 4 - 4 - 1, आंसर आएगा -1। एफ ऑफ -1 के लिए -1² + 2 इंटू -1 -1 यानी 1 - 2 -1, आंसर आएगा -2। एंड एफ ऑफ 0 के लिए 0² + 2 इंटू 0 -1 यानी -1 आएगा। तो यहाँ पे दो वैल्यू के लिए एफ ऑफ -2 के लिए एफ ऑफ 0 के लिए कोरस्पॉन्डिंग जो इमेजेस है, फंक्शनल इमेजेस है, वो दो सेम आ गई है। इसके कंक्लूजन हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ -2 एंड एफ ऑफ 0 की फंक्शनल इमेज सेम है -1, सो इट इज मैनी वन फंक्शन, सो इट्स मैनी वन फंक्शन। वी नीड टू कंक्लूड अबाउट टाइप ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में एफ ऑफ एक्स इज 2x - 4/x+7 फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स द इमेज इज 0। हमें पूछा गया है फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स इमेज इज 0, यानी इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स के लिए वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 4/x+7 में एफ एक्स की जगह पे 0 रखेंगे, सो 2x - 4/x+7, ये x+1 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, सो 2x - 4 इक्वल्स टू 0 यानी 2x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4/2 यानी आंसर आएगा 2। सो फॉर x इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ x इज इक्वल टू 0। 13 नंबर के क्वेश्चन में एफ ऑफ z -2 दिया गया है अप टू z, यानी डोमेन सेट में z लेना है, यानी इंटीजर से जिसमें 2 को एक्सक्लूड कर देना है, और को डोमेन सेट में z यानी पूरा z सेट है इंटीजर्स का। एफ ऑफ x इज x² + x - 6/x-2। पहले फैक्टराइजेशन से इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूमरेटर में x² + x - 6 है उसके हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। लास्ट वाली टर्म नेगेटिव है, माइनस में है, इसलिए बीच में जो दो टर्म हम इंसर्ट करेंगे वो दोनों टर्म की साइन डिफरेंट होगी, जिसका डिफरेंस 1 आना चाहिए और मल्टीप्लीकेशन 6 आना चाहिए। 6 1 जा 6,
सो मल्टीप्लीकेशन 6 एंड डिफरेंस शुड बी 1, यानी 3 2 6 में डिफरेंस 1 आएगा और मल्टीप्लीकेशन 6 होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव साइन है बीच में, इसलिए हमें बड़ी टर्म को पॉजिटिव लेना होगा। तो प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 अपॉन में x माइनस 2। देन फैक्टर्स में x कॉमन लिया तो x प्लस 3, माइनस 2 कॉमन लेने पे अगेन x प्लस 3 और अपॉन में x माइनस 2, यानी x प्लस 3 इंटू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, जिसमें x माइनस 2 एलिमिनेट हुआ तो बचेगा x प्लस 3। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे वैल्यूज के लिए। f ऑफ x हमें सिंप्लीफाई कर दिया है x प्लस 3, तो अब f ऑफ माइनस 2 के लिए आएगा माइनस 2 प्लस 3 1, f ऑफ माइनस 1 के लिए आएगा माइनस 1 प्लस 3 2, f ऑफ 0 के लिए आएगा 0 प्लस 3 3, f ऑफ 1 के लिए आएगा 1 प्लस 3 4, f ऑफ 3 के लिए आएगा 3 प्लस 3 6। अब यहाँ पे कोई भी कोरस्पॉन्डिंग इमेज सेम नहीं आ रही है डोमेन सेट की किसी भी वैल्यू के लिए, तो कंक्लूजन है टाइप ऑफ फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में fx है 6x क्यूब माइनस 5 रेज टू x प्लस 15 और हमें f ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी x की जगह 0 रखना है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू 6x क्यूब माइनस 5 रेज टू x प्लस 15, f ऑफ 0 के लिए 6 इंटू 0 क्यूब माइनस 5 रेज टू 0 प्लस 15, यहाँ 6 इंटू 0 0 हो जाएगा। 5 रेज टू 0 किसी भी वैल्यू की कांस्टेंट वैल्यू का इंडेक्स 0 है तो उसका आंसर 1 होगा, प्लस 15 तो माइनस 1 प्लस 15, f ऑफ 0 का आंसर आएगा 14। नेक्स्ट जो क्वेश्चन लास्ट है इस सेक्शन का, f ऑफ x इज x क्यूब माइनस 2x प्लस 1 अपॉन x एंड वी नीड टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यू फॉर f ऑफ 3 प्लस f ऑफ माइनस 3। तो पहले f ऑफ 3 के लिए वैल्यू निकालेंगे। f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 2x प्लस 1 बाय x, f ऑफ 3 है 3 क्यूब माइनस 2 इंटू 3 प्लस 1 बाय 3, 3 का क्यूब होगा 27 माइनस 6 प्लस 1 बाय 3, एलसीएम 3 होगा यानी 3 इंटू 27 81, 3 इंटू 6 यानी माइनस 18 प्लस 1 बाय 3, 81 माइनस 18 प्लस 1 64 बाय 3 इज आंसर फॉर f ऑफ 3। f ऑफ माइनस 3 के लिए माइनस 3 क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3, माइनस 3 का क्यूब होगा माइनस 27, माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 6 हो जाएगा और लास्ट में माइनस 1 बाय 3 रहेगा। एलसीएम 3 है तो 3 इंटू 27 यानी माइनस यहाँ पे 81, 3 इंटू 6 होगा 18 एंड माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 81 प्लस 18 माइनस 1, आंसर इज माइनस 64। सो f ऑफ माइनस 3 इज माइनस 64 बाय 3। नाउ वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर f ऑफ 3 प्लस f ऑफ माइनस 3। f ऑफ 3 की वैल्यू है 64 बाय 3, f of 3 is 64 by 3 and f of minus 3 is minus 64 by 3. So 64 by 3 minus 64 by 3 आंसर आएगा 0। इस तरह से हमें ये f of 3 प्लस f of minus 3 का आंसर एक्सट्रैक्ट करना है। रेस्ट ये जो क्वेश्चंस थे वो बेसिक क्वेश्चन है फ्रॉम सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। रेस्ट ऑफ द टेक्निकल क्वेश्चंस, टिपिकल क्वेश्चंस वी शैल डील इन नेक्स्ट सेशन। सेक्शन डी हम डील करेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू।